of you once again. So our today's topic is the lesson proposal. So we have already discussed this lesson yesterday. We have introduced this lesson with you all. And my name is Mohinder Kumar Goswami, and I am working as a teacher in PM Shri Government Girl High School, Bator. And this is one of the great opportunities for all of us that we are connected here with online mode. So as I told you people that yesterday we have discussed the lesson proposal, and this lesson is very important from examination point of view. First of all, I would like to tell you that in a 10th class paper, there will be a question of 6 marks from this chapter. It is quite clear that if we learn this chapter by heart, so we will get the 6 marks. So, as you know, your paper pattern has been changed now, and there will be a theory paper as well as internal assessment. When we talk about theory paper, it will be of 80 marks. And when we will talk about practical or internal assessment, it will be of 20 marks. So it should be clear and another internal assessment. So internal assessment will be given to you by the school, and theory paper you have to attempt it in the board. So for that, starts today's topic, that is the proposal. So yesterday we have discussed this topic with you all, but I was unable to share the screen at that time. So let's introduce with this lesson. The lesson proposal is one act play. So as you know, you will see in the screen that the proposal lesson is one of the beautiful play in your English book. Or one of the most important thing about this play is that this is one act play. There is stories, there are poems, there are prose, and there is also one part of English language, that is play. There are characters in the play, they play their roles, and then they will act accordingly. So this is one act play, and actually it is a Farsi written by Anton Chekhov. तो देर प्यारे बच्चों, ये जो प्रपोजल लेसन है, ये एक वन एक्ट प्ले है। और ये जो प्ले है, इसको एक्ट किया जाता है। एक्चुअली जब आप इसको क्लास में रियल रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम इसको पढ़ते हैं, तो वी मस्ट एक्ट द करेक्टर्स। हमें करेक्टर्स बनने चाहिए। जैसे व्हेन वी रीड दिस स्टोरी, तो वी विल फाइंड दैट देयर आर थ्री करेक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स इन दिस प्ले। they are Nachalya, they are Chobukov, and the one is Lomo. So Lomo is the hero of the story, and Chobukov is the main character in the story. Also one of the main character, because he's the father of Nachalya. So we will also discuss those characters one by one. But one of the most important thing which you need to remember here, that it is a Farsi. तो यहाँ जो वर्ड बच्चों फारसी यूज हुआ है, स्टोरी, इट इज समथिंग विच इज वी कैन से इमेजिनेटिव स्टोरी। एक ऐसी काल्पनिक कहानी होती है, हंसी मजाक वाली एक स्टोरी होती है, जिसे हम फारसी कहते हैं। तो ये जो कहानी है, इसको लिखा था एंटोन चिको। तो ये आपने याद रखना है। देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स दैट इन एग्जामिनेशन examiner may ask that who has written the story proposal. There may be, it may be a 1 mark. So at that time, you must know the writer's name, that is Anton Chekhov, and he has written this play in 1888 and 1890, 1819. तो द टाइटल, तो बच्चों हम इसके टाइटल की अगर बात करें, द टाइटल ऑफ द प्ले इज द प्रपोजल, एंड इट इज वेरी एप्ट। एप्ट, यू नो वर्ड, व्हाट डज द एप्ट मीन? एप्ट मीन हियर सुटेबल। जो वर्ड एप्ट होता है ना, इसको हम अपनी सिंपल भाषा में, वी यूज दिस वर्ड इन सिंपल लैंग्वेज एज वेरी suitable. So the title of the play is the proposal, and it is very apt one. The whole play is about Lomo proposing Nachalya. So this is one of the very interesting story, because there you see the hero, the main hero of the story is Lomo, and the main heroine of the story is Natalia, and the whole play is about their proposing of Lomo to Natalia. So that is one of the most important thing in this play, because this play is based on the theme of marriage proposal. So similar like that, you will see that there is the main hero of the story is Lomo, who is 35 years old, and Natalia is 25 years old. But his father, whose name is Chobukov, he thinks
he thinks it is a burden on him of Natalia. He thinks that Natalia is a marriageable age and he should get married as soon as possible. So there is something like that. Lomo went to the house of Tobacco for marriage. उधर देख रहे हो मेरा किताब नहीं क्या है So let's discuss the characters in the play. बच्चों ये आप नोट कर लें कि इस प्ले के अंदर these are the three characters which are most important. You can say very important. हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि हमारे मार्क्स कैसे आए, हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें, हम पेपर में कैसे लिखें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दिस यू नीड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट टू डू इन द एग्जामिनेशन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे अच्छे मार्क्स भी आए और हम स्कोर करें. तो आपने देखा होगा. तो दिस इज वट एवर यू आर सीइंग इन द स्क्रीन. these are the three important characters in this play. तो अगर आप ये प्ले आप बाद में जाओ आफ्टर द क्लास you will open your textbook and you will find that in the lesson proposal these are the very important characters. ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो इस प्ले की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें एग्जामिनेशन के लिए इस पूरे प्ले से यही तीन कैरेक्टर्स लर्न करने हैं. ये तीनों लेक्चर्स इसे लर्न करने हैं. फर्स्ट वन है चोबुको जो कि लैंडलॉर्ड हैं, Natalia, the daughter of the Chobukov, and the Lomov Chobukov's neighbor. तो dear स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों कैरेक्टर को समझने की कोशिश करोगे तो चोबुकोव कौन है? एक बहुत बड़ा जमींदार है. लैंडलॉर्ड होता है जमींदार जिसकी बहुत बड़ी जमीन हो, बहुत बड़ा जमीन का मालिक हो. और नटल्या कौन है? ये इसी लैंडलॉर्ड यानी कि चोबुकोव की एक बेटी है जिसकी उम्र 25 ईयर्स है. एंड देन देयर इज द थर्ड कैरेक्टर whose name is Lomov. So Lomov is the Chobukov's neighbor. He is also one of the landlord. तो अच्छा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay. So let's now continue to the theme of the play. So this is the theme of the play. If you see in the screen, this is the, and I will share the PDF to you. So dear students, this is the theme of the play, and theme, you can say theme is the main crux of the story. In short, you can say this is the main moral of the story, or in short, you can say the subject of the story. Whatever there is in the story, it is also written in the theme. So one of the most interesting thing about the play is that if you face any kind of question in the paper and you will unable to write the answer, at that time you just write down the theme. Just cut the line theme and then write down this question. मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर इस कहानी में से करेक्टर्स नटल्या का, चोबुकोव का या लोमोव का अगर आपको पेपर में नहीं आता है और आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आता है, तो आप जस्ट थीम वर्ड को काट दीजिए इसमें से और पूरा ये जो क्वेश्चन है ये आप उसके नीचे लिख दीजिए. इंग्लिश को पास करना इज वेरी इजी. English language is not a difficult language, but we have a strategy. We should be very smart in writing this language. ये बहुत इजी लैंग्वेज है. अगर हमें एक क्वेश्चन आता है दैट मीन्स हमें बहुत कुछ आ जाता है. बट द थिंग इज दैट हाउ वी ऑर्गेनाइज दैट कंटेंट इन एग्जामिनेशन, हाउ वी राइट दोज थिंग्स इन द पेपर, this depends on us that how we start writing the questions. So the play proposal is written by Anton Chekhov, as we have already discussed. It is based on the theme of marriage and its proposal. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहानी जैसे कि इसका नाम है प्रपोजल, इसमें एक शादी का प्रस्ताव रखा जाता है और ये थीम बेस्ड भी किस पे है? मैरिज पे बेस्ड है और इसके ही प्रपोजल पे. तो इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैरिज एंड इट्स प्रपोजल. इट्स ओनली पर्पज इज टू प्रोवाइड प्योर ह्यूमर. और ये जो कहानी है इसका कोई मकसद नहीं है. इसका मकसद यही है कि एक हंसी मजाक, एक खुशी बच्चों में दी जाए और बाय द वे ऑफ दिस स्टोरी वी डेवलप आवर ओन लैंग्वेज. तो ऑल द सिचुएशन इन द प्ले आर ridiculous and unlikely. I have already told you that this is not a real story. This is an unreal story, but it is based on the imagination of the writer. He wants to present a story that is pure, that has a pure humor. So we have to learn this story by heart. It is not difficult to learn this theme. You just go through one by one lines
and that automatically helps you a lot. The play is about a young man's proposal of marriage to a young girl. तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इस कहानी में द हीरो ऑफ द प्ले इज लोमो एंड हीरोइन ऑफ द प्ले इज नचल्या. Natalia is 25 years old and Lomov is of 35 years old. And the whole play is about their proposal of marriage. So after much cloning and harsh play, so these two terms are, this is the play, this is the phrase, this is the phrase cloning and harsh play. The term used here in this theme, after much cloning and harsh play, this is a phrase type, this is a phrase and it means after very much struggle. क्या आखिर बहुत सारी स्ट्रगल के बाद उनका प्रपोजल जो है फाइनली एक्सेप्टेड हो जाता है विदाउट बीइंग मेड. विदाउट बीइंग मेड का मतलब हुआ कि कहानी में वो प्रपोजल लेके जाते हैं. लोमो जो है वो नटल्या के घर में प्रपोजल लेके जाता है शादी का, बट वो वहां जाके भूल जाता है कि मैं शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ. उसकी जगह वो क्या करता है, वहां पहले जमीन के ऊपर लड़ाई हो जाती है, फिर उसकी नटल्या के साथ एक कुत्तों के ऊपर लड़ाई हो जाती है, पेट डॉग्स के ऊपर. तो वो मेन मकसद भूल जाता है कि हमने क्या करना है, कि मैं किसके लिए आया हूँ. तो दिस इज स्टोरी ऑल अबाउट देयर प्रपोजल, बट एक्चुअली द प्रपोजल वाज नॉट मेड. कहानी इतनी हंसाने वाली है कि इस कहानी के अंदर शादी का प्रपोजल जो लेके जाते हैं वो एक्सेप्ट होता ही नहीं है, मतलब उसको पेश किया ही नहीं जाता है, लेकिन बिना पेश किए उसकी शादी हो जाती है एंड में. So this is all a humorous type of story, a very laughing story if you read this para. So in this play, Lomov and Chobukov are two neighbors. इस कहानी में लोमोव और चोबुकोव दोनों पड़ोसी हैं, वो साथ में रहते हैं. लोमोव कम्स टू चोबुकोव्स हाउस टू प्रपोज हिज डॉटर. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें लोमोव जो है वो चोबुकोव के घर में आता है उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए. So Lomo comes to Chobukov house to propose his daughter Nachalya, and Lomo is already 35 years old, as we have already discussed this thing, and he thinks that it is critical age. अब देखो इस कहानी में जो लोमो है उसकी उम्र 35 साल है और वो सोचता है, he thinks that it is critical age, और वो ये सोचता है कि ये जो उम्र है 35 साल, दिस इज वेरी क्रिटिकल एज, ये बहुत ही वर्ष पे है, एंड पे है, अगर मैं इस चीज पे शादी नहीं करूंगा तो हो सकता है मेरी शादी ना हो. तो ही थिंक्स लाइक दैट. तो इन दी स्टोरी द मेन कैरेक्टर हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी हुज नेम इज लोमो, he thinks that he is already 35 years and now he thinks that he is on a critical age and he must get married at once. उसे लगता है कि मुझे अभी के अभी शादी कर लेनी चाहिए, अगर मैं शादी नहीं करूंगा हो सकता है मेरी हो ही ना. तो इसलिए वो नटल्या के घर जाता है शादी का प्रस्ताव लेके. तो वहां पे जाके उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं होता. Natalia is 25 years old. Chobukov thinks it is burden to be the father of a grown-up girl. तो बच्चों इस कहानी में जो नचल्या है उसकी उम्र 25 साल है, हालांकि 25 साल कुछ होती नहीं है, लेकिन उसके फादर चोबुकोव को लगता है कि ये जो उम्र है ये बहुत ज्यादा हो गई है, और उसे लगता है कि मेरी बेटी जो है अब मेरे पे बर्डन है. तो चोबुकोव थिंक्स इट इज अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ग्रोन अप गर्ल, कि एक ऐसी लड़की जो जवान हो गई है उसकी शादी की जिम्मेवारी उसके फादर पे है. तो वो सोचता है कि अब उसकी शादी करवाना जरूरी है और वो उसके लिए बर्डन है. तो ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ द बर्डन एज सुन एज पॉसिबल. और चोबुकोव चाहता है कि वो इस बर्डन से जितना जल्द हो सके उतना जल्द छुटकारा पाए. दैट व्हेन लोमस कम्स टू प्रपोज टू नटालिया, जब कहानी में लोमो नटालिया को प्रपोज करने आता है तो चोबुकोव गोज मैड विद जॉय. तो लड़की का फादर है, उसे पता चलता है कि लोमो मेरी बेटी को प्रपोज करने आया है, तो उसे खुशी होती है क्योंकि उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही होती है, और वो सोचता है कि भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन है. तो नटालिया चोबुकोव मैड विद जॉय होता है खुशी से पागल हो जाना. बट वेरी सून ही एंड हिज डॉटर एंटर into a useless argument with Lomov. So, dear students, we have already discussed that Natalia and his father Chobukov has already started a fighting with Lomov. हालांकि वो शादी का प्रस्ताव लेके आया होता है लेकिन वो प्रस्ताव वहां पेश नहीं कर पाता, तो उनकी लड़ाई हो जाती है जमीन के ऊपर, जो उनके घर के सामने बहुत बड़े मीडोस होते हैं. तो वो कहता है चोबुकोव कि ये हमारे हैं, नटल्या कहती है हमारे हैं, और लोमो कहता है हमारे हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि
उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो दे अब्यूज ईच अदर, लड़ाई इस कदर हो जाती है कि लोमो और नटालिया और उसके फादर के बीच में गाली गलौज हो जाती है। दे अब्यूज ईच अदर, इसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे से गाली गलौज करने लगते हैं। द कॉल बिकम्स सो बिटर दैट लोमो कैनॉट स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड फेंट्स। कहानी इतनी खतरनाक हो जाती है और इतनी खराब हो जाती है कि लोमो इस कहानी में, इस लड़ाई में सामना नहीं कर पाता एक दूसरे से, और एक दूसरे का वो स्टैमिना नहीं कर पाता। और लोमो इस कहानी जो ये लड़ाई है इसको स्टैंड नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। कहानी मतलब ऐसी लड़ाई होती है तीनों के बीच में कि लोमो जो है वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। फेंट मतलब बेहोश हो जाना। तो बच्चों आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न सेंटेंस बाय सेंटेंस। एक एक सेंटेंस को आप पढ़िए, अच्छे से उसके मीनिंग को समझिए और अपनी नोटबुक पे उसको बार बार लिखिए। यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, यू विल डेफिनेटली लर्न दिस थीम। और थीम आपको याद करना ही करना है, क्योंकि देर आर 4 important questions which are very important from examination point of view. The one is theme, another is the character of Natalia, then the character of Chobukov, and then the character of Lomo. So if you learn all these 4 questions, so I am 100% sure that you will get 6 marks out of this. So I have made a very simple language. I will also share the notes with you all so that you may not do learn from other things. This is very simple language. You should not go to the guide and you should learn from this. I will share the PDF with you all. मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूंगा। जिस स्कूल के पास नहीं होगी तो दे कैन टेक फ्रॉम मी ऑन माई नंबर। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं नंबर पे, मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा। तो देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट, लोमो मूव्स अ लिटिल। अब क्या होता है कि लोमो जो है वो बेहोश हो जाता है। नचल्या बिगन्स टू क्राई बिकॉज शी थिंक्स ही इज डेड। अब वो इतना इस तरह से बेहोश होता है कि उसकी जो नचल्या है उसे लगता है कि वो रोने लगती है, वो सोचती है कि लोमो की मौत हो गई है, लोमो डेड हो गया है। शी थिंक्स दैट ऑल हर चांसेस ऑफ हर गेटिंग मैरिड आर नाउ लॉस्ट। उसे लगता है कि भाई लोमो शादी का प्रपोजल लेके आया था, लेकिन वो प्रपोजल पेश नहीं हुआ। अब उसे लगता है कि लोमो अगर मर गया तो मेरी जो शादी के चांस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे। तो शी थिंक्स दैट आवर चांसेस ऑफ हर गेटिंग मैरिड आर नाउ लास्ट। लोमो मूव्स अ लिटिल, तभी लोमो थोड़ा सा हिलता है। तो एट वन चोबुको पुट्स लोमो हैंड इन नतालियाज हैंड। और जैसे ही वो थोड़ा सा होश में आता है तो नतालिया का फादर क्या करता है, नतालिया का हाथ पकड़ के टोबू को लोमो के हाथ में दे देता है और कहता है कि ये रेडी है शादी के लिए। हालांकि शादी का प्रस्ताव जो है वो रखा भी नहीं, लेकिन बेहोश होने के बाद उनको लगता है कि ये कहीं मर ना जाए। तो इसलिए जब वो होश में आता है तो नटल्या का जो फादर है चोबू को, वो उसका हाथ उसके हाथ में दे देता है लोमो के। तो नटल्याज हैंड, तो ही सेज टू हिम हरी अप एंड गेट मैरिड। और उससे बोलता है जल्दी कर, जल्दी करो और शादी कर लो। शी इज विलिंग, अब वो एग्री है शादी के लिए। तो बेटा इसमें एक चीज नोटिस करनी है आपने। इसमें देखो इन्वर्टेड कामास दिए होते हैं। यहाँ लिखा है हरी अप एंड गेट मैरिड शी विल विलिंग। ये सर इन्वर्टेड कामास जो होते हैं। जी आवाज आ रही है सर? जी जी सर हाँ। ठीक है तो इसमें देखो जो लास्ट लाइन लिखी है, ही सेज टू हिम हरी अप एंड गेट मैरिड शी इज विलिंग। ये जो वर्ड्स होते हैं ये डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जिनको हम कामास के अंदर रखते हैं इनको इन्वर्टेड कामास कहते हैं, या हम इनको कोटेशन मार्क्स कहते हैं। तो जब भी हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो स्पीकर है जिसने ये वर्ड्स बोले हैं वो डायरेक्ट वर्ड है, उसके अपने वर्ड्स हैं, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की। तो एग्जाम में आपको इनको ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे डायरेक्ट स्पीच यूज हुई है। जो बाकी जो पूरा थीम हमने लिखा है, रेस्ट ऑफ द थीम दिस इज ऑल इन इनडायरेक्ट स्पीच, वो सारी इनडायरेक्ट स्पीच है जो हम लिख रहे हैं। मगर जो कामास में हमने वर्ड्स लगाए हैं दीज आर द सेम वर्ड्स विच आर टेकन फ्रॉम द लेसन योर प्ले प्रपोजल। ये प्रपोजल से लिए गए वर्ड्स हैं, इसलिए इनको कामास में रखा जाता है। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दस द प्ले लीव्स द रीडर चंकलिंग चकलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जब कहानी खत्म होती है तो एंड में जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स मीन जैसे हम बच्चे पढ़ने वाले, तो हमें हंसी आने लगती है कि दिस इज ऑल अबाउट द प्ले विच इज विच हैज अ प्योर ह्यूमर एंड इट इज रिडिकुलस टाइप ऑफ प्ले, अनरियल सिचुएशन।
but the writer has given a situation in like a very comedy type of manners. That's why this play is very beautiful in that terms of other literature. So let's come to the next topic. अब हम चलते हैं बच्चों, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लोमो. We have discussed the theme. Now we will discuss about the character, the first character or the play that is Lomo. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन, पहले आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता था, लेकिन अब 10th में पैटर्न चेंज है. लास्ट ईयर से द पैटर्न हैज बीन चेंज. नाउ 20 मार्क्स विल बी गिवन फॉर इंटरनल असेसमेंट, विल योर स्कूल विल प्रोवाइड यू, एंड 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर. और 80 में से हमें सिर्फ पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए. और दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पूरी आप इंग्लिश की बुक पढ़ोगे तो यू विल गेट 38 मार्क्स. 38 मार्क्स आपको मिलेंगे किताब पढ़ के. तो रेस्ट ऑफ द मार्क्स विल गोज टू योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो आपके पैसेज होंगे. उसके बाद आपका राइटिंग स्किल होगी 25 नंबर की. आपका ग्रामर होगा 8-9 नंबर का. उसके बाद आपके लेटर्स राइटिंग होंगी. तो जितने भी ये टॉपिक्स होंगे हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और नोट्स आपके साथ शेयर करते जाएंगे. लेटर्स के नोट हमारे पास पड़े हैं, करेक्टर्स के मैंने बनाए हुए हैं. जो स्पीच राइटिंग आती है आपकी 5 मार्क्स की, उसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. लास्ट ईयर जो बच्चों को मैंने नोट्स दिए थे, उनमें से ही पेपर पूरा का पूरा सेट हुआ था. और हमारे स्कूल से एक बच्चे ने 100 मार्क्स भी स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100, पूरे 10 पॉइंट्स. मतलब मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैं, दे हैव स्कोर. हमारी स्कूल की 17 डिस्टिंक्शन थी, जिसमें 3 पोजीशन थी जो 95+ थे. So it's not difficult that you will not able to score these marks. It's very easy. I will share the notes with you all. गाइड पढ़ के कभी नंबर नहीं आते. और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप पेपर में गाइड खोल के भी लिखेंगे ना, तब भी आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लिश पैटर्न हैज टोटली चेंज. देयर विल बी क्वेश्चन मार्क्स ऑफ ओनली 38 मार्क्स. 38 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. The question which I discuss here, I will discuss from examination point of view. If you learn this question by heart, I 100% guarantee you that you will score good marks in paper. तो ये जो नोट्स हैं, यू विल नॉट सी दीज नोट्स इन द गाइड. ये गाइड में नहीं मिलेंगे आपको. अगर मिलेंगे भी तो वहां एक पैरा दिया होगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. गाइड में जो पैरा दिया होता है उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है और वो याद नहीं होता. आपको यहाँ मैंने पैरा में नोट्स दिए हैं, छोटे छोटे पैरे बनाए हैं, 2-2, 3-3 लाइंस के. आपने एक एक पैरा लर्न करना है. जिस बच्चे को पास होना है वो 3 पैरे ही कर सकता है लर्न. जिसको लगता है कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, उसको 6 के 6 पैरे लर्न करने हैं. बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 6 मार्क्स. ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा. तो आज हम एक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कल आप इसको नोट्स बनाएंगे अपने घर में और इसको आप लर्न भी करेंगे एक एक करके. किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो हमारी कल की क्लास होगी, द क्लास विच वी विल टेक टुमारो, तो वी विल डिस्कस विद यू ऑल. अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू एनी वर्ड, एनी क्वेश्चन, एनी पैराग्राफ, if you are not able to understand, so I will also repeat it tomorrow. So the first character, let's discuss the first character, character of Lomo. The full name of Lomo is Ivan. देखिए इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लोमो, और लोमो का फुल नाम है आइवन वैसिलीविच लोमो. ये इसका पूरा नाम है. दिस प्ले द मेन कैरेक्टर इज लोमो एंड हुज नेम इज आइवन वैसिलीविच लोमो. ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले. और लैंग्वेज, आई हैव कीप द लैंग्वेज वेरी सिंपल. इतनी सिंपल है कि एक बार आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगा. आपको इसलिए गाइड को सोचना भी नहीं है, उसकी तरफ जाना भी नहीं है. आपको ये नोट्स आपके शेयर कर दूंगा मैं आपके नंबर पे. तो यू कैन राइट योर ओन नोट्स इन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर. ओके. तो ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले. ये कहानी का मेन कैरेक्टर है. द प्रपोजल, ही इज अ यंग मैन. ये एक नौजवान लड़का है. ही इज अ फनी कैरेक्टर. फनी मीन हंसाने वाला कैरेक्टर है. बड़ा ही मजाकिया किस्म का कैरेक्टर है. ही इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ. अब देखिए ये जो लाइन लिखी है, ही इज नॉट ए कैरेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ, इसका मतलब जो हकीकत असली जीवन होता है, जो हमारे लोगों की लाइफ होती है, असली लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता है कि शादी का प्रपोजल लेके जाएगा और उनके घर जाके लड़ेगा. तो ये कहानी जो है बड़ी फनी है.
और जो करेक्टर भी है बहुत ही फनी करेक्टर है। ही इज नॉट ए करेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस करेक्टर इज नॉट फ्रॉम रियल लाइफ। दिस करेक्टर स्केच कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, कि हम इसके करेक्टर को लोमो के कुछ हेडिंग्स हैं जिसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज फनी करेक्टर। सबसे पहला पॉइंट, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं, अंदर का कंटेंट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। Rare point. द फर्स्ट पॉइंट इज, बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. गुड गुड। अब लग रहा है कि काफी एनर्जी है। तो तो देखो बच्चों, आई नो कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ। यू हैवंट एनी टीचर्स इन योर स्कूल यू टीच यू, और आपको क्योंकि अब उनकी प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन चलो जो भी है, हालात से लड़ना ही जिंदगी है। अगर आप इन हालात से निकल के बाहर निकलोगे तो आप लाइफ में बहुत दूर जाओगे। तो यू गॉट ए सच ए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दैट यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद अस, and we will share all the content which we are teaching in here in city. So we will provide you the best quality material. So you need not to be worried. You just go through the content. You will definitely score good marks in your examination. I assure you that you will score good marks. So funny character. So let's come to the point. Funny character. तो लोमो इज द फनी कैरेक्टर। जैसे हमने बात की कि बड़ी हसान हंसी मजाक वाला कैरेक्टर है। ऑल हिज एक्शन इन द प्ले आर कॉमिक। और जितनी भी उसकी एक्शंस हैं कहानी के अंदर वो हंसाने वाली हैं। तो इसमें लिखा है ऑल हिज एक्शन इन द प्ले आर कॉमिक, कि सारी जो उसकी एक्शंस हैं प्ले के अंदर वो बड़ी ही हंसाने वाली हैं। ही सीम्स टू बी एन इक्सेंट्रिक आल्सो। अब देखो बच्चों, इसमें टर्म यूज हुई है इक्सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक होता है अनोखा, अजीब। ऐसा लगता है कि वो एक अजीब कैरेक्टर है। जब आप वहाँ पहली कहानी पढ़ते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें भी ये टर्म यूज हुई है इक्सेंट्रिक। ही इज एगर टू मैरी नटालिया। वो बहुत ही उत्साहित होता है, बहुत ही उसे अंदर एक जुनून होता है कि मैंने नटालिया से शादी करनी है। बट व्हेन ही कम्स टू प्रपोज टू हर, लेकिन जब वो उसे प्रपोज करने आता है तो ही स्टार्ट्स टॉकिंग इरेलेवेंटली। तो जब वो उसे प्रपोज करने आता है ना, तो वो काम की बात नहीं करता है, बदले में वो क्या करता है कि इधर उधर की बातें करने लगता है। ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज मीडोज। तो मैंने पहले ही कहा कि उनकी लड़ाई होती है किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। मीडोज होते हैं खुले खेत, बड़े बड़े खेत जो होते हैं उन्हें मीडोस कहते हैं। तो वो कहता है कि मीडोस हमारे हैं, तो नटलिया कहती है हमारे हैं। शादी का प्रपोजल लेके गया होता है और जमीन के ऊपर लड़ रहा होता है। तो इट लीड्स अ बिटर आर्गुमेंट बिटवीन द टू। नटलिया क्लेम्स द मीडोस आर देयर्स। द आर्गुमेंट टर्न्स वेरी हार्ड। लोमो बिकम्स टेरिबली एक्साइटेड। ही लीव्स इन ए फिट ऑफ एंगर। तो हमने कहानी में पढ़ा कि वो उसके आर्गुमेंट जो आपस में होते हैं नटलिया के साथ वो बहुत ही खराब होते हैं, और दोनों के बीच में। और नटलिया कहती है कि मीडो हमारे हैं और लोमो कहता है कि हमारे हैं। और इनके आर्गुमेंट इतने खतरनाक हो जाते हैं कि लोमो वहां से गुस्से से चला जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट फनी करेक्टर। तो आप इस करेक्टर को, पहले पॉइंट को याद रखोगे और आगे वाली जो लाइंस है इनको कोई 5-10 बार लिखोगे और बार बार लर्न करोगे, ये अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। ये गाइड्स पे आपको ऐसे पॉइंट में नहीं मिलेगा। आपके लिए ये नोट सिंपल है और लर्न करना आसान है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पैरा इज सिंपल बाय नेचर। लोमो जो है उसकी नेचर बहुत सिंपल है। लोमो इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वेर एज नटलिया इज वेरी क्वेलसम एंड अब्यूजिव। देखो इस कहानी के अंदर जो लोमो है वो थोड़ा सिंपल है नेचर का, लेकिन नटलिया की जो नेचर है वो बड़ी क्वेलसम और गाली देने वाली है। हालांकि इसकी भी वैसी ही है, तो फर्क कुछ खास नहीं है, दोनों अब्यूजिव नेचर के हैं। लड़ाई तभी होती है जब दोनों एक जैसे हों। He gets very nervous when Natalia begins a bitter quarrel. जब इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही नर्वस हो जाता है। एंड कम टू प्रपोज टू हर, जब ये प्रपोज करने आया होता है उसको, तो ये काफी नर्वस हो जाता है। विद ओवर ए पीस ऑफ लैंड दैट हैज ए लिटिल वैल्यू। अब देखो सोचने की बात है, शादी का पेशकश लेके गया था लेकिन जमीन के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई और जिस जमीन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी। तो ये चीज हो जाती है। बट when she learns that Lomo had come to propose to her, she forgets all about fairness. She begins to wail over the last chance. She forces her father to call him back. अब देखो जब नटलिया को पता चलता है कि लोमो मुझे प्रपोज करने आया था, तो क्योंकि वो गुस्से में चला जाता है वहां से, तो वो अपने फादर को कहती है कि उसको वापस बुलाओ। शी अगेन फिक्स अ कॉल विद हिम, लेकिन जब वो वापस आता है दोबारा से लड़ाई कुत्तों पे शुरू हो जाती है। तो दिस टाइम इट इज ओवर देयर पेट डॉग। तो सेकंड टाइम जो लड़ाई होती है वो डॉग्स पे होती है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सेकंड टाइम किस पे लड़ाई होती है। अगर आपने नहीं लर्न किया हो तो आपने यही पैरा उठा के लगा देना है वहां पे।
इंग्लिश को पास करना इतना आसान है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रन किया होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा उसकी जगह वो आंसर लिख देना है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लोमो अगेन पिक्स अप अ क्वार्रल विद हिम, तो लोमो दोबारा उससे लड़ाई शुरू कर देता है, जिस टाइम इट इज ओवर देयर पेट्स डॉग्स। लोमो बिकम सो एक्साइटेड दैट फेंट्स। और हमने ये भी पढ़ा कि लोमो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। ये पढ़ा हमने। नाउ नटालिया क्राइज टू हर फादर टू कॉल अ डॉक्टर। तो नटालिया रोने लगती है और कहती है अपने फादर को कि डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ और इसको ठीक करो। तो नॉट ए करेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ। और ये जो सेकंड पैरा है, थर्ड पैरा, हमने इसमें लिखा है कि लोमो जो है इज नॉट ए करेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ। नो मैन इन रियल लाइफ बिहेव्स द वे लोमो डज। तो हमने ये कहानी में पढ़ा कि लोमो एक ऐसा करेक्टर है कहानी में जो रियल लाइफ से नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जो करेक्टर होता है वो, उसको कहते हैं हम कि वो इस तरह से बिहेव नहीं करता जैसे कि लोमो ने इस कहानी में किया, कि कोई शादी का पेशकश लेके जा रहा है और वो जाके लड़ाई करे। तो दिस इज नॉट इन रियल लाइफ पॉसिबल। तो दिस प्ले इज ए फारसी। ये कहानी हंसी मजाक वाली है। एंड लोमो इज टू इज द पार्शियल करेक्टर। और इस कहानी का जो मेन करेक्टर है लोमो, वो भी एक फनी करेक्टर है। तो दिस इज द पैरा नंबर थर्ड। देन कम्स टू नेक्स्ट पैरा, कैरेक्टर ऑफ लोमो, मेन कैरेक्टर। बच्चों ये जो कैरेक्टर है ना, मेन वर्ड, मेन कैरेक्टर आपने क्या करना है, जो भी कैरेक्टर कभी भी आपको कहीं लिखना हो तो ये वाला पैरा आपने हमेशा लिखना है, लिखना ही लिखना है। कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो लोमो का हो, नटल्या का हो, चोबुकोव का हो, या फिर किसी और कहीं का कैरेक्टर हो, जैसे मिसेस बैनेट का हो, मिसेस बैनेट का हो। एक पैरा है जो आपके पास हमेशा रहेगा। तो पेपर में एग्जामिनर को थोड़ी ना पता होगा कि आप मेन कैरेक्टर आपने नटल्या में भी लिखा है, चोबुकोव में भी लिखा है, कैरेक्टर तो एक दो ही आएगा। तो आपने हर कैरेक्टर में ये वाला पैरा लिखना ही लिखना है कि ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ऑल द इंसिडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद हिम। द प्ले कैनॉट बी रन इवन फॉर ए सेकंड विदाउट हिम। ठीक है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हाँ, जस्ट अ मिनट। So in the end, you have to write down the conclusion. And in conclusion, we have to write that in the end we can say that he is not a character from real life. और एंड में हम ये लाइन लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोमो है, ही इज नॉट ए character फ्रॉम रियल लाइफ। नो मैन इन रियल लाइफ बिहेव्स द वे लोमो डज। कोई भी करेक्टर रियल लाइफ में ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे कि लोमो ने इस कहानी में किया है। तो बच्चों आज हम एक ही करेक्टर रखेंगे और एक थीम। कल हम दो करेक्टर इसका पढ़ेंगे, चोबुकोव का करेक्टर, और साथ में करेंगे हम किसका करेक्टर, नटल्या का। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, द प्रपोजल। और इसमें से आफ्टर लर्निंग ऑल द फोर क्वेश्चंस यू विल गेट 6 marks in the exam। और it is quite 100% clear that one of the question is asked in the exam। इन चारों में से एक पेपर में आना ही आना है। और जब हमें पता है कि एक आना ही आना है, तो क्यों ना हम इन चारों को अच्छे से लिख लिख के लर्न करें। और जब हम इनको लिख लिख के लर्न करेंगे तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सेंटेंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आपने ये अच्छे से लर्न करने हैं। आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट हाई स्कूल तराना को मैंने पहले से शेयर किए हैं। और हाई स्कूल गोई अगर सर सुन पा रहे हैं तो मैं नंबर बच्चों लिखा देता हूँ। तो आप सर को दे के ये मुझे व्हाट्सएप नंबर करना, मैं यहाँ से नोट शेयर कर दूंगा। तो नंबर लिख लें 990। किसी भी बच्चे को नोट चाहिए हो तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और कहना है कि मुझे नोट चाहिए सर इस चीज के। तो 99061। अपने पेरेंट्स के मैसेज फोन से भी आप कर सकते हो कि सर इसके नोट्स चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू। 99061 77598। तो ये नंबर रख लें। बाकी हम यहाँ पे नोट्स डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। सर लेट यार नंबर एक बार फिर रिपीट करना। 99061
77 598। ठीक है सर, ओके। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9906177598। ठीक है सर, थैंक तो ये आप जो है, इस स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं, 9906177598। यू। ये यहीं के हैं हमारे तो से। ठीक है, तो ये नंबर आप रख लें। इस पे कोई भी किसी भी टॉपिक के नोट चाहिए होंगे तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी, तो आई विल शेयर विद यू ऑल। सो यू नीड नॉट टू बी वरी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ताकि आप पेपर में अच्छे भी नंबर आए और आप कुछ सीख भी पाए। तो हम उसी तरह से चलेंगे इसमें। तो किसी बच्चे को इफ यू हैव एनी डाउट इन माइंड रिगार्डिंग द पेपर यू कैन आस्क मी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। तो कल बच्चों हम इसी टाइम पे 11:50 पे फिर से जुड़ेंगे। और नेक्स्ट जो दो करेक्टर्स बचे हैं, लोमो और चोबुको, लोमो नहीं सॉरी, नटल्या एंड चोबुको, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आई विल टेक फर्स्ट दोज टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, those questions, those topics which are asked frequently in the papers. So I will first discuss those topics with you so that you may get something out of it. So you just start focusing on these things. Whatever I tell you here, you just go through these things, learn by heart. ठीक है, फिर हम ऑनलाइन एक आपका एग्जाम भी कंडक्ट कर लेंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे घर में तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको एक एक पैरा उठाना है और उसको ही बार बार पढ़ना है। एक एक लाइन को आप 10-10 बार रिपीट कीजिए। देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। बच्चों, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता और कोई भी वीक नहीं होता जब तक वो अपने दिमाग का सही प्रयोग ना करे। अगर आप एक लाइन को 10 बार रिपीट करोगे तो अपने आप याद हो जाती है। जैसे हमें अपने घर का एड्रेस याद होता है, हमें अपने भाई बहनों का नाम याद होता है, तो ये चीजें भी याद हो सकती हैं। बट इसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए, वी नीड प्रैक्टिस टू रिपीट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। इफ यू रिपीट अगेन एंड अगेन तो ऑटोमेटिकली यू विल लर्न द थिंग्स। तो इट्स वेरी इजी। हम एक भी क्लास लेंगे जिसमें आपको आपको पढ़ने के बारे में भी बताएंगे कि लर्निंग, दिमाग को कैसे बढ़ाया जाता है या अपनी लर्निंग को कैसे तेज किया जाता है, ब्रिलियंट कैसे बना जाता है। तो चलो, वी विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज हम क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं और टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11:50 अगेन। थैंक यू वेरी मच। रखूँ आपसे।